سب سے پہلے عالمی اردو مجلس دہلی کے صدر جناب ڈاکٹر حنیف ترین سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمانوں کا باضابطہ استقبال کریں. محفل سجی ہوئی ہے جس کی زینت بنے ہوئے ہیں ہندوستان کے، میں کہوں کہ ہماری قوم کے سب سے بڑے دانشور، سب سے بڑے ایسے شخص جو سنت پر حقیقی عمل کرتے ہیں. اگر ہم رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اچھی طرح پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہاں یقولون ما لا تفعلون ہے. تو میں خوش نصیب ہوں کہ جامعہ ملیہ کے بعد آپ سے ملاقات میری یہاں ہوئی اور مجھ ناچیز کی گزارش پر آپ یہاں تشریف لے آئے. آپ کو اندازہ نہیں ہے ان کی ویژنریزم کا یا ان کی جو دانشورانہ صلاحیتیں ہیں. تو کہتے نہیں کرتے ہیں. انہوں نے جامعہ یونیورسٹی کو جامعہ یونیورسٹی بنا دیا. آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ کو بھی A+ میں ڈالوا دیا ہے. میں سلیم پنڈت صاحب ہیں وہ شخص کرٹیسائز کرنے والوں کو یوں نہیں کیا، کبھی ادھر ادھر ٹائم ویسٹ نہیں کیا، مگر وہ ایسے اخبار کی نیوز میں پھنسے کہ وہ آج ہاتھ آئے ہیں میرے. بہت بہت شکریہ، سب کا شکریہ تمام. انشاءاللہ تعمیل ارشاد ویلی کا سب سے بڑا اخبار روزنامہ ہوگا. آکاش امین صاحب، آپ نے آج دعوت چھوڑی ہے، گشتابہ کھانا چھوڑا ہے. نگار اور صحافی جناب غلام نبی خیال صاحب کو عالمی اردو مجلس دہلی کی جانب سے اعزاز سے نوازا جائے گا. شال پوشی کے لیے بشیر صاحب یہ آئیے بیچ میں آپ. تعمیل ارشاد ایک منفرد تاریخ ہے کیونکہ اس اخبار کے مدیران و ارکان کو بہت سارے چیلنجوں کا مقابلہ کرنا پڑا، تاہم ہمت اور حوصلہ نہ ہارتے ہوئے اس مشن کو سرفروش کی طرف پائے تکمیل تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی. اگرچہ یہ اخبار ابتدائی دور میں شمالی کشمیر کے لوگوں کی آواز تصور کیا جاتا تھا، تاہم ستمبر 2014 میں تباہ کن سیلاب کے دوران اخبار کے منتظمین اور جملہ اراکین صحافتی میدان میں ایک تاریخ رقم کی. جب تمام وسائل محدود ہوئے اور ہزاروں لوگوں کے گھر غائب ہونے کی افواہیں گشت کر رہی تھی تو منتظمین کے ہمراہ اراکین نے اخبار کی اشاعت کو ممکن بنا کر تمام افواہ اور خدشات کو دور کیا. تعمیل ارشاد پرنٹ میڈیا کے اعتبار سے وادی کے گھر گھر کی آواز بن گیا ہے، جبکہ انٹرنیٹ کے ذریعے عالمی سطح کی آواز بھی بنا ہوا ہے. اخبار ہزار جہاں لوگوں تک خبریں پہنچانے کا کام بڑی انہماک کے ساتھ انجام دے رہا ہے، وہیں یہ اخبار وادی کے ادیبوں، شعراء، دانشوروں کی صلاحیتوں کو منظور ادا کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ. جس کے ہاتھ میں طلعت احمد صاحب کو شال اڑا دی جائے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے. عالمی اردو مجلس دہلی کے نائب صدر جناب بشیر چراغ صاحب کو شال پیش کریں. پروفیسر طلعت صاحب سے گزارش ہے کہ وہ عالمی اردو مجلس دہلی کے صدر و سربراہ کو شال پیش کریں. جس کا سارا ظہور ہے وہی گھاس اور کوڑا. سایہ بھی جہاں ساتھ نہیں دیتا ہے اپنا، یہ کس مقام پر ہمیں لائی ہے زندگی، کس طرح سے ہم کو ستائی ہے زندگی، پھر بھی سکون کے ساتھ بتائی ہے زندگی. اور میں ان کو بڑا تحسین دیتا ہوں کہ یہ آگے بھی اسی جذبے، اسی لگن اور اسی خلوص کے ساتھ اپنے ادب کی، اردو ادب کی خدمت کرتے رہے، اور جہاں بھی ہمارا تعاون چاہیے ہم حاضر رہیں گے، ہر ایک انفرادی طور پہ بھی، محکمانہ طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. کشمیر ویلی کے
शायर बड़े मशहूर अदीब जनाब गुलाम नबी ख्याल साहब, मैडम मरियम कश्मीरी साहिबा, जो कि हमारे बड़े मशहूर और बहुत बड़े कंट्रीब्यूशंस जो कश्मीरी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज ने किया है, जनाब प्रोफेसर हमदी कश्मीरी साहब, शमीम साहिबा, गुलजार साहब, हमारे दूसरे दोस्त अहबाब, यहाँ पे जो लोग आए हैं, मैं सबको बहुत अदब के साथ सलाम करता हूँ। और ख़ास करके नदीम तरीन साहब का जो कभी जिक्र आया था, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है मुल्क में, और ख़ास करके जब मैं दूसरे टर्म पे कश्मीर यूनिवर्सिटी आया तो जो सबसे पहला फंक्शन मैंने अटेंड किया था इन्हीं का था, जिसमें इन्होंने कुछ और लोगों को फैसिलिटेट किया था। तो तरीन साहब जो हैं, डॉक्टर तरीन साहब, ये दिल्ली के अलावा कश्मीर पे ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। ज़ाहिर है आप सबको पता है कि दिलचस्पी की वजह क्या है, और होना भी चाहिए, इनको आप मना भी नहीं कर सकते। अभी तो मैं कहीं बाहर था, लेकिन ये था कि मुझे आते ही उन्होंने पकड़ा कि नहीं आपको आना है, और मैं कभी इनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। फरीद तरीन साहब के ये फंक्शन कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उर्दू लैंग्वेज को आगे बढ़िंग है, ख़ास करके इतने टॉप नॉच अदीब और शायर जो वैली के हैं, आप सब यहाँ आए हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और अश्योर करता हूँ कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशंस होगी उर्दू ज़बान को बढ़ाने के लिए, फ़रोग़ करने के लिए, उर्दू एकेडमी जो है उसको बाज़ाब्ता यहाँ पे करना चाहिए, उसको इस्टेब्लिश, और उसमें भी जो मदद होगी यूनिवर्सिटी की, हम सबसे जो भी पर्सनल लेवल पे भी होगी, हम आपके इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ की तकरीबात का सिलसिला उन्होंने गुज़श्ता साल शुरू किया, और खुदा का शुक्र है कि आज ये फिर इस तकरीब को दोहरा रहे हैं। जबकि ये एक हकीकत है कि उर्दू जो इस वक्त है वो बाद मुखालिफ की हवा की लकीरों में गिरी हुई है। आप सब जानते हैं रहा है वो सरकार नहीं कर रही है। सरकार ने कागजी तौर पर इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, लेकिन सरकारी तौर पर एक लफ्ज़ भी उर्दू में नहीं लिखा जाता। अगर आप शाम को रोज़ यहाँ के डिप्टी कमिश्नरों की बातें सुनेंगे, वो 2 मिनट बात करके 900 मिनट से ज़्यादा अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। आज से कई साल पहले मैंने इकबाल इंस्टीट्यूट दिल्ली में एक तकरीब में शमूलियत की। मैंने उनसे कहा कि आप कश्मीर के उर्दू वालों को या कश्मीरी अदीबों को उकसाते हैं। मैंने लफ्ज़ उकसाना इस्तेमाल किया कि आप उर्दू में लिखिए। जनाब बशीर चिराग साहब, डॉक्टर तरीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मतलब अर्ज कर रहा हूँ, सबका ध्यान चाहता हूँ। मेरी गज़ल की किताबों में भी बसे खुशबू, जो बात मुझको हो कहनी उसे कहे खुशबू। मेरी गज़ल की किताबों में भी बसे खुशबू, जो बात मुझको हो कहनी उसे कहे खुशबू। और ये शेर अर्ज किया, उसे पता तो चले कितनी खूबसूरत है। अरे वाह! उसे पता तो चले कितनी खूबसूरत है, जो आईना कभी शबनम का देख ले खुशबू। उसे पता तो चले कितनी खूबसूरत है, जो आईना कभी शबनम का देख ले। अभी जिस्म है लेकिन मुझे वो शख्स तो हर रंग में लगे खुशबू। सभी फूल उसको दे दूंगा, जरा सी देर की खातिर अगर रुके खुशबू। रियासत में उर्दू ज़बान की तरक्की व तरोइज के लिए काफ़ी कुछ हो रहा है।
कई तंजीमें यानी अदबी तंजीमें इस हवाले अपनी मस्बत काविशें उन्होंने शुरू की हैं, लेकिन मजलिस उर्दू जो दिल्ली जिनकी तरफ से आज एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ था यहाँ पर, तो इस तकरीब का मकसद भी यही था कि रियासत में उर्दू की तरवीज के हवाले काम किया जाए। इस सिलसिले में इन्होंने कुछ एजाज़ात भी रखे थे जो मतलब उर्दू अदब के हवाले या उर्दू सहाफ़त के हवाले जिन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं उनको यहाँ एजाज़ात से नवाजा गया। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उर्दू किताबें पढ़ना ये आप समझ लीजिए कि अब मफकूद होता जा रहा है। तो लेकिन इसी सिलसिले की एक कड़ी है ये, ताकि आवाम में खुसूसन एक शऊर पैदा किया जाए। तो उस शऊर पैदा करने के लिए ऐसी तकरीरों का इनेकाद नहायत ही नागज़िर। उर्दू अदब के साथ, उर्दू ज़ुबान के साथ अपनी वाबस्तगी कायम रखें। और इस सिलसिले में ये कहूँगा कि उर्दू ज़ुबान में जो भी मतलब पब्लिश हुई हैं किताबें, चाहे वो शायरी हो या नसर हो, वो उनका मुताला करें और ऐसी तकरीबात में हिस्सा लें ताकि उनकी जो दिलचस्पी है उर्दू ज़ुबान के हवाले वो बढ़ जाए और उसी तरह उर्दू ज़ुबान की भी तरवीज हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि आए दिनों जो उर्दू ज़बान अदब के हवाले से या हमारी मादरी ज़बान कश्मीरी ज़बान अदब के हवाले से जितने भी प्रोग्राम मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ इदारों से, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी वो हो रहे हैं, इस वजह के लिए कि हमें अपनी ज़बान अदब के तई जितना लगाव हो वो दिन ब दिन ज़्यादा पैदा हो जाए और जो हमारी आने वाली नस्ल है उनके लिए, उनकी ज़बान अदब के लिए रास्ता होगा। हर जगह जहाँ भी कोई किसी इदारे के ज़रिए से किसी प्राइवेट अदबी अंजुमन के ज़रिए से जहाँ प्रोग्राम होते हैं वहाँ अमूमन और ख़ास तौर से बच्चों को, स्कूली बच्चों को, कॉलेज लड़कों को, यूनिवर्सिटी तलबा को बुलाया जाता है सिर्फ इसलिए कि उनका रुझान जो है वो जैसे जहाँ एक तरफ अंग्रेज़ी एतबार से, अंग्रेज़ी ज़बान अदब के एतबार से ज़्यादा है, वहीं वो ये हो जाए, राग़िब हो जाए अपनी जो उर्दू ज़बान अदब है उसकी तरफ, और कश्मीरी ज़बान अदब जो है उसकी तरफ राग़िब हो जाए। उसके लिए बहुत सारे ये जितने काम, जितने प्रोग्राम हो रहे हैं इसी लिए हो रहे हैं, इसी वजह के लिए हो रहे हैं। और उसी सिलसिले की ये कड़ी है जो यहाँ दिल्ली बेस्ड आलमी उर्दू मजलिस नई दिल्ली जिसके रोह रवां जनाब डॉक्टर नितरीन साहब है, और खुशकिस्मती से कश्मीरी यूनिट के लिए इस इदारे के लिए मैं बहसत वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ हूँ। वो इसलिए कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम यहीं से उन बच्चों के पास जाए, उन तफक्कुर इजहार वाले ज़हन के पास चले जाएं और उनको अपनी तरफ से इस ज़बान की तरफ से, इस इल्म अदब की तरफ से उनको राग़िब करें ताकि ये जो हमारी ज़बान है ये तरक्की और तरवीज के लिए ये अपना रास्ता हमारा है। अंजुमन वालों को पता नहीं है कौन कहाँ है, लेकिन जहाँ वो इजहार वाले, तफक्कुर वाले बच्चे जहाँ भी ये सुनेंगे, ये देखेंगे कि फ़लान जगह प्रोग्राम है, वो दौड़ के चले आए और अपने अंदर का जो भी उनके अंदर ये इल्म अदब का जो लावा होगा वो बाहर से बिल्कुल बगैर झिझक के वो निकाले। तो ये मेरी मैसेज उनको है कि वो बगैर किसी हिचकिचाहट के वो आ जाए प्रोग्रामों में, और जितने हमारे बुज़ुर्ग अदीब और शोरा हैं उनकी किताबें जो हैं वो किताबें लाएं, उनको पढ़ें। हर एक एतबार से उनको निगरानी हो जाएगी और उनकी ज़बान जो है वो इंशाअल्लाह मुस्तहकम हो जाएगी।